یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری شکل گوگلے سے ملتی تھی اور مجھے اس کا ڈپلیکیٹ بن کر اس رول کو ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ میں غریب مفت میں مارا گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگا۔ میں نے اس سے کہا، تم ابھی مارے نہیں گئے ہو، لیکن واقعی مفت میں مارے جاؤ گے اگر تم نے ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے اور کوئی بات چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں سرکار، بھگوان کی سوگند، میں کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ جو کچھ میرے علم میں ہے آپ کو ہر بات بتاؤں گا۔ مستان کے پہرے داروں کو ابھی تک حقیقت کا علم نہیں تھا۔ وہ حیرانی سے گوگلے سیٹ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ مستان نے اپنے محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوں آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے اس بھائی نے گوگلے کو ختم کر کے اس کے دھندے کی بساط ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی ہے۔ یہ گوگلے کا ہم شکل ہے جسے وہ آگے رکھ کر دھندا کرتا اور اپنی جان بچاتا تھا۔ میرے بھائی نے اس کمینے کی سازشوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ میں اب بالکل خاموش تھا کیونکہ یہاں کی زیر زمین سرگرمیوں کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں تھا جن کے متعلق میں گوگلے سیٹ سے سوال کرتا۔ مستان نے اس سے پوچھا، میرا نام جانتے ہو؟ ہاں سرکار، آپ حاجی مستان سیٹ ہیں۔ اب حاجی مستان کے سوالوں اور گوگلے کے جوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک پہرے دار آیا اور بتایا، وحید آیا ہے۔ مستان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ مستان نے فون اٹھایا اور آواز سنتے ہی ٹیلی فون سیٹ کا وہ بٹن دبا دیا جس سے آواز اسپیکر پر آنے لگی۔ فون یوسف پٹیل کا تھا۔ اس نے کہا، گیو کھلے کو بمالیہ سلام، اس کے گروہ کے آج شام مار دیا گیا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام تمہارا نہیں بلکہ ہمارے مشترکہ مہمان کا ہے۔ مستان نے فوراً کہا، ہمارے مہمان کا نہیں بلکہ میرے بھائی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ میرا بھی بھائی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو، اسی لیے ہتھیار بھی وہ مجھ سے ہی لے گیا تھا۔ یوسف پٹیل نے جواب دیا۔ اب میرے لیے ان دونوں کی باتیں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ میں ٹیلی فون کے قریب گیا اور اسپیکر میں زور سے کہا، اور اب تم دونوں کا بھائی تمہاری باتوں اور بے احتیاطی کے سبب جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور پھر جلد ہی پھانسی کے تختے پر چلا دیا جائے گا۔ کیا تم دونوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے سب ٹیلی فونوں پر آبزرویشن لگی ہوئی ہے؟ میری آواز سنتے ہی یوسف پٹیل نے فوراً فون بند کر دیا۔ مستان نے بھی جھٹ سے فون بند کر دیا۔ میں نے تو یوں ہی آبزرویشن والی بات کہہ دی تھی، مگر مستان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے۔ حاجی مستان پچھتاوے کی علامت بنا بولا، میں جان پر کھیل جاؤں گا لیکن تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا۔ جان پر کھیل جاؤں گا لیکن تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نے تو یوں ہی یہ بات کہی تھی تاکہ تمہاری گفتگو کو ختم کر سکو۔ بہرحال قیصر اور اس کے ساتھیوں کو کل دہلی بھیجنا ہے، اور میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جلد از جلد کلکتہ جا کر ہرن گھاٹا کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ وحید گفتگو کے دوران ہی ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مستان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے میری لاعلمی میں جو کچھ کیا ہے، میرے بھائی نے تمہاری ایسی وکالت کی ہے کہ میں نے نہ صرف تمہیں معاف کر دیا ہے بلکہ ہونے والے تمام اخراجات کے علاوہ 2 لاکھ روپے انعام میں دیتا ہو۔ منشی سے جا کر یہ رقم لے لینا۔ پھر اس نے حکم دیا، قیصر اس کے ساتھیوں اور سپنا کے لیے کل بعد دوپہر دہلی کی فلائٹ کے ٹکٹ لے لینا۔ میں نے فوراً مداخلت کی، نہیں، جہاز سے نہیں، ریل کے ذریعے جانا ہے۔ جہاز پر اسلحہ نہیں جا سکتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر دوران سفر کوئی مشکل آن پڑی تو یہ بغیر ہتھیاروں کے پھنس جائے۔ مستان نے میری بات سمجھ لی اور وحید کو ہدایت دی کہ ٹرین کے ٹکٹ پک کروائے۔ میں نے مزید کہا، دہلی جانے والے ساتھی کلیان تک لوکل ٹرین میں جائے اور پھر وہاں سے دہلی والی ٹرین میں بیٹھے، کیونکہ آج کی واردات کے بعد ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ بمبے سینٹرل ٹرمینس پر بھی چیکنگ شروع ہو چکی ہوگی۔ اسی دوران میری نظر نقلی گوکھلے پر پڑی۔ وہ قالین پر ابھی تک ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، حد ہو گئی ہماری حماقت کی۔ پہلے تو یہ صرف چشمدید گواہ تھا، اور اب یہ نہ صرف ہماری باتیں سن چکا ہے بلکہ آئندہ پروگرام اور روانگی کے بارے میں بھی سب جان چکا ہے۔ مستان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے جواب دیا، یہ بے ضرر ہے، اسے ہم جلد ہی آزاد کر دیں گے۔
इसने वहीद को कहा, इसका एड्रेस ले लो, फिर 1 लाख रुपए इसके घर वालों को देना और घर के करीब ही इसे आज़ाद कर देना। वहीद ने पहरेदारों को हुक्म दिया, इसका मुंह कपड़े से बंद कर दो और हाथ पुश्त पर बांध दो। पहरेदार अपना काम शुरू करने ही वाले थे कि बाहर से इत्तला आई कि गनी मेमन अपने 4 साथियों के हमरा आया है और अंडरग्राउंड काम करने वालों के उसूल के मुताबिक उन्होंने अपना तमाम असलहा पहरेदारों के हवाले कर दिया है। मस्तान ने उन्हें फ़ौरन अंदर बुलवा लिया और खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। उस ग्रोह का लीडर गनी मेमन दरमियाने जिस्म और कद का 30-35 साला शख्स था। उसके चेहरे पर सबसे नुमायां उसकी तेज चमकदार और जिस्म में खुब जाने वाली उकाबी आंखें थीं। तारुफ के बगैर ही वो मेरी तरफ बढ़ा और हाथ मिलाते हुए बोला, हम मुसलमानों के मुश्तरका दुश्मन और उसके ग्रोह को ख़त्म करने पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जवाब देने के लिए मौजू अल्फाज का इंतखाब कर ही रहा था कि वो गोगले की तरफ देखते हुए बोला, हाजी भाई, आपने तो बताया था और हमें भी आज शाम मालूम हुआ था कि गोखले मारा जा चुका है, लेकिन ये तो यहाँ जिंदा सलामत मौजूद है। गनी भाई, ये असल गोगले का हमजाद है। गोगले को ऊपर भेज दिया गया है और इस हमजाद को भी अनकरीब उसके पास भेज दिया जाएगा। उसका एक और हमजाद हमें अभी तक नहीं मिला। गोगले इन दोनों की वहां कमी महसूस कर रहा होगा, लिहाजा इसे भी तलाश करके उसके पास रवाना कर दिया जाएगा। नकली गोगले अपनी आज़ादी का सुनकर चीखने चिल्लाने लगा था, लेकिन मुंह बंद होने के बायस सिर्फ गो गो ही कर सका और मस्तान के आदमी उसे खींच कर बाहर ले गए। अगले रोज मस्तान ने मुझे बताया, इसके घर वालों को 1 लाख रुपया देकर घर के नज़दीक ही इसके आदमियों ने इसका काम तमाम कर दिया था। गनी मुझे और मैं गनी को परखने की कोशिश में थे। दोनों ये देख रहे थे कि हम आखिर कितने पानी में हैं। गनी ने मुझसे चंद सवाल पूछे तो मैंने हंसकर जवाब देने के बजाय कहा, हम अमली काम करने वाले हैं। सवालात तो उनसे पूछे जाते हैं जिनके काम का कोई नमूना सामने ना हो। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं ऐसे सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करता जिनसे कोई मेरी कारकर्दगी को जांचना चाहे। मैंने मजीद कहा, मेरे मुताल्लिक मस्तान भाई ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम क्या करते हो और आइंदा के क्या प्रोग्राम हैं। मस्तान ने फौरन बात बदली ताका कशीदगी ना बले। मेरे ख्याल में पहले खाना खा लिया जाए, भूख से मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। 15 मिनट बाद डाइनिंग रूम से लजीज खानों की खुशबू आने लगी। हमने खाने के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू की और संजीदा मौज़ूआत से एहतराज किया। रात तकरीबन 1 बजे महफिल बर्खास्त हुई। गनी मेमन ने गर्मजोशी से मेरा हाथ मिलाया और कहा, मैंने अब से जानबूझकर ऐसे सवाल किए थे जिनका जवाब देने को कोई माकूल आदमी तैयार ना होता। हाजी मस्तान से के बकौल अब ठोस शख्सियत के मालिक हैं। गोखले को ख़त्म करके आपने हमें हर रोज़ बढ़ती हुई अजियत से नजात दिला दी है। मेरी तो दिल्ली ख्वाहिश है कि आप मस्तान सेठ और यूसुफ पटेल के इख्तिलाफात ख़त्म करवा दे। अगर हम तीनों इकट्ठे मिलकर काम करें तो पूरे भारत में हमसे टुकर लेने का कोई सोच भी नहीं सकेगा। ये कहकर गनी और इसके साथी रुखसत हुए। कैसर को बम्बे गैराज छोड़ने के लिए मस्तान ने अपने मुहाफिजों के साथ एक गाड़ी में भेजा और हम दूसरी गाड़ियों में मालाबार वाले बंगले की तरफ रवाना हुए। गाड़ी में मस्तान ने मुझसे पूछा, गनी के मुताल्लिक तुमने क्या राय कायम की? मैंने मस्तान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मस्तान भाई, तुम्हारे धंधे में उनकी पोजीशन तुम बेहतर जानते हो। इस मुख्तसर मुलाकात में मुझे तो यही लगा है कि ये लोग चमड़ी जाए दमली ना जाए वाले उसूल पर चलते हैं। गोखले के खात्मे के बाद अब ये तुम्हारे और यूसुफ के बाजुओं के सहारे अपना मकाम बनाना चाहते हैं, और अगर एक बार ये इस मकाम पर पहुंच गए तो तुम दोनों को मक्खन के बाल की तरह अलहदा कर देंगे। मेरे ख्याल में वक्त का तकाजा ये है कि तुम और यूसुफ मिलकर उनको अपनी औकात में रखो। तुम दोनों के पास ताकत है, हिम्मत है, पैसा है और वसी ताल्लुकात हैं। अगर ये एक बार ताकत पकड़ गए तो तुम्हारे लिए गोखले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैं खामोश हुआ तो मस्तान बोला, मैं तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं। गोखले की वजह से ही मैं उनसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा था। यहां से जाने से पहले तुम यूसुफ को जरूर मिलोगे।
इसे मेरी तरफ से यकीन दिलाना कि मेरे दिल में इसके खिलाफ कोई खोट नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बात वो गौर से सुनेगा। हम दोनों ना तो गनी की तरह जवान हैं कि ये सोचे अभी बहुत वक्त पड़ा है, और ना ही हमें नए ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है। गनी ने बड़ी अहमकाना बात की थी कि अगर हम तीनों मिल जाए तो कोई हमसे टुकर नहीं ले सकता। मैं समझता हूं कि अगर यूसुफ और मेसाफ दिल्ली से एक दूसरे का साथ दे तो इस मेमन टोले समेत कोई मैली आंख से हमारी तरफ देख भी नहीं सकता। मैंने सर हिलाया और कहा, मैं समझ गया मस्तान भाई, आप यूसुफ से ताल्लुकात दोबारा उस्तवार करना चाहते हैं। सुबह मैं इससे मिलूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप दोनों की गलत फहमियां दूर हो जाए। यूसुफ भी दिल का अच्छा है, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात रद्द नहीं करेगा। इतनी देर में हमारी गालियां बंगले पर पहुंच गईं। मैं दिन भर की कार्रवाई से ज़हनी और जिस्मानी थकन से चूर हो रहा था। मैंने मस्तान से इजाज़त लेकर अपने बेडरूम का रुख किया और जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। अगले रोज़ सुबह मैं मग और मोरंग कबायर के जवाहिरात की फरोख्तगी से मिलने वाले 4 करोड़ 40 लाख रुपए और गोगले की तिजोरियों से मिलने वाली सारी दौलत, जेवरात वगैरह लेकर बम्बई गैराज गया और ये तमाम रकम अपने सारे साथियों में यकसा तकसीम कर दी। हिरन घाटा पर स्टीमर में हमारे मुंतजिर साथियों का बराबर का हिस्सा मैंने अलहदा कर लिया था। मेरा भी उस दौलत में बराबर का हिस्सा था। सपना को मैंने 15 लाख रुपए और चंद जेवरात दिए। गोगले की तिजोरी से मिलने वाले 2 बड़े हीरे मैंने बहैसियत लीडर अपने लिए रख छोड़े थे। मुसलसल भागते और मुख्तलिफ मार्कों में जान हथेली पर लिए हुए अपने मुखालिफिन और अपने दोस्तों के दुश्मनों का खून बहाते बहाते मैं तंग आ चुका था। मेरे घरेलू हालात इस कदर नागुफ्ता बे हो चुके थे कि अपना घर मुझे जन्नत के बजाय जहन्नुम दिखाई देता था। मैंने सोचा था कि अपने हिस्से की रकम और दोनों हीरों की फरोख्तगी से मिलने वाली रकम में से मैं आधी घर वालों को देकर खुद किसी तीसरे मुल्क में जाकर असर नो जिंदगी का आगाज करूंगा, जिसमें सिर्फ अमन होगा, घरेलू खुशियां होंगी, राहतें होंगी। मैं उस जिंदगी से अब तक थक चुका था और नई जिंदगी शुरू करने की सोच में खासा दूर जा चुका था। लेकिन ए बसा आरज़ू के खाकशुद तकदीर मेरे इन ख्याली खाकों पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मुझे अभी मुश्किलात, मसाइब और खून के कई समंदरों से गुजरना था। आज सारा दिन मैंने कैसर और साथियों के साथ गुजारा। ये अजीब इत्तेफाक था कि मेरी हर मुश्किल में काम आने वाले उन साथियों के साथ आगाज मुलाकात से ही ये जब भी मुझे मिले मेरे साथ रहे। हमारा तमाम वक्त मुश्किलात का सामना करने, दुश्मनों से नबर्द आजमा होने और खून बहाने में ही गुजरा। इतने मुखलिस साथियों के साथ में खिले और पुरसुकून ज़हन के साथ चंद लम्हे भी खुशगुपिया आसेर और तफरी ना कर सका था। अगरचे मेरे कारवा में खाई साथी रज़ी और बांग्लादेशी फौजी भी शामिल हो चुके थे, लेकिन इस तमाम अरसे में हमें सुकून का एक लम्हा भी नसीब न हुआ था। और आज दिल्ली वाले साथियों का ये गिरोह वापस जा रहा था। मैंने तकरीबन आधा घंटा कैसर के साथ अलहदगी में गुजारा और इसे दिल्ली में आरिफ और नज़ीर के लिए खतूत दिए। मैंने कैसर को एक ख़त कर्नल शंकर के नाम देते हुए कहा कि चंद रोज़ आराम करने के बाद वो सर्विसेज क्लब में जाकर कर्नल शंकर का पता करे, और अगर वो मिल जाए। मैंने कैसर को कर्नल शंकर का हुलिया अच्छी तरह से ज़हन नशीन करा दिया था, तो इसे मेरा ख़त देकर फ़ौरन ही वापस चला जाए। इस अलहदा मुलाकात के बाद मैं फिर तमाम साथियों के पास चला गया। शाम को हाजी मस्तान ने अलविदाई पार्टी देने का इंतज़ाम किया था। इसने अपने मुहाफिजों से एक थैला लेकर इसमें से बंद लिफाफे निकाल कर मेरे तमाम साथियों बमालेही सलाम सपना के दिए। हर लिफाफे में भारतीय साथियों के लिए 3-3 लाख रुपए और तेयू और बांग्लादेशियों के लिए इसके मसावी अमरीकी डॉलर थे। अभी पार्टी जारी की और हम सब खुशगप्पियों में मशगूल थे कि अचानक और खिलाफ तवक्को मस्तान के मुहाफिजों के साथ यूसुफ पटेल अपने मुहाफिजों के साथ हाल में दाखिल हुआ। दोनों के मुहाफिज इसे अंदर छोड़कर हाल से बाहर चले गए। यूसुफ हाजी मस्तान को नज़र अंदाज करते हुए सीधा मेरे पास आया और पूछने लगा, खैर तो है जो मुझे 20 लाख रुपए लेकर यहाँ बुलवाया है? इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान और शशतर रह गया। मैंने इससे कहा कि मैंने तो इसे नहीं बुलवाया। मस्तान हमारे करीब ही खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने ही पटेल को तुम्हारा नाम लेकर यहाँ बुलवाया है। हमारे इतने बड़े दुश्मन गिरोह का खात्मा करने वालों के कुछ साथी आज जा रहे हैं और उनकी अलविदाई पार्टी में इस कद्दू की शमूलियत ज़रूरी थी।
पटेल को गंजा होने के बाइस इसके बेतकल्लुफ और हम असर दोस्त प्यार से कद्दू कहते थे। पटेल खश्मगी निगाहों से इसे देखते हुए मुझसे ही मुखातिब रहा। इस काले बांस मस्तान, दुबला पतला, 6 फुट से ज्यादा लंबा, गहरे सानोले रंग का था, ने मुझे तो डरा ही दिया था। उन दोनों के इस बेतकल्लुफना अंदाज तखातुब से मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनके दरमियान कशीदगी की जो पहली की दीवार है, ये दोनों इसे गिराना चाहते हैं, लेकिन ये वक्त इस काम के लिए मौजू न था। मैंने पटेल को कैसर और इसके साथियों से मुतारफ कराते हुए कहा कि मेरे इंतहाई मुखलिस और जान हथेली पर रख कर साथ देने वाले साथियों का ये ग्रुप आज वापस दिल्ली जा रहा है। पटेल उनसे बहुत खुश दिल्ली से मिला और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, हमारा ये दोस्त बहुत खुश नसीब है जिसे अब जैसे मुखलिस साथी मिल गए। भारत और खतमंडो के सारे कारनामे जो उनके साथ अपने अंजाम दिए थे, उन्हें ये तफसला बता चुके हैं, और कल का वाकया तो किसी हद तक हमारा चश्मदीद है। वो सारा असलहा अब का ये दोस्त मुझसे ले गया था, वो भी अब की नज़र है, और ये 20 लाख रुपए कल के मिशन में शामिल होने वाले तमाम साथियों के लिए मेरी तरफ से नजराना है। ये कहकर यूसुफ पटेल ने एक बरीफ केस मुझे दिया जिसमें 100 के नोटों वाली गुद्दियाँ पड़ी थीं। मैंने आईसीओ को कहा कि कल के मिशन में शामिल होने वाले साथियों में उन्हें यकसा तकसीम कर दे। यूसुफ ने मुझसे पूछा कि जाने वाले साथी जहाज से जा रहे हैं या ट्रेन से। मस्तान ने, जो काले बांस की शब्बा से चिड़चिड़ा सा हो रहा था, जवाब दिया, कोई अहमक ही इतने असलहे समेत जहाज से जाने का सोच सकता है। पटेल ने भी तुर्की बातुर्की जवाब देते हुए कहा, किसी जाहिल ने ना तो खुद आज के अखबार पढ़े होंगे और ना ही आपको दिए होंगे। ये कहते हुए अखबारात का एक बड़ा पुलंदा मुझे देते हुए इसने कहा, उन तमाम अखबारों में कल के वाक़े की मुफस्सल खबरें और 2 में तो इस वाक़े से मुताल्लिक अदर ये भी छुपे हैं, उन्हें आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं अपने 2 मुहाफिज उन्हें दिल्ली तक बहिफाजत पहुंचाने के लिए हमरा भेजूंगा। मस्तान ने जवाबन कहा, मेरे 3 मुहाफिज भी उनके साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर तक उन दोनों में दोस्ताना अंदाज में ये अल्फाज की जंग जारी रही और पटेल और इसके मुहाफिज कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीकर रुखसत हो गए। पटेल ने जाते वक्त कहा कि मुकर्रर वक्त पर वो कोलाबा स्टेशन के बाहर हमें मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक उस स्टेशन से मेरे साथियों ने कल्याण के लिए लोकल ट्रेन पर जाना था। दोपहर 4 बजे मैं, वहीद और 6 मुहाफिजों के साथ कैसर और उसके साथियों और सपना के साथ कोलाबा पहुंचे। कैसर और साथियों से गले मिलकर अलविदाई मुलाकात मैंने बम्बई गिराज में ही कर ली थी। स्टेशन के बाहर पटेल अपने मुहाफिजों समेत मौजूद था। मस्तान और पटेल के 5 मुहाफिज कैसर और उसके साथियों के साथ ट्रेन में सवार हुए। बिछड़ते वक्त हम सब की आंखें पुरनम थीं। ट्रेन रवाना हुई तो उसके ओझल होने तक हम हाथ हिलाकर अलविदा कहते रहे। हम स्टेशन से वापस चलने लगे तो पटेल ने वहीद को कहा कि मस्तान सेठ को कह देना कि हमारे ये दोस्त आज रात मेरे ही पास ठहरेंगे और मैं कल दिन को इन्हें वापस छोड़ जाऊंगा। ये कहकर पटेल ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और हम 1 घंटे में मैरियन ड्राइव पर उसके बिल्डिंग में पहुंच गए। मेरी हिदायत के मुताबिक बम्बे से रवानगी के तीसरे दिन सुबह कैसर ने दिल्ली के एक पीसीओ से फ़ोन किया। इसने बताया, हम सब अपने साथियों और मुहाफिजों के साथ बखैरियत दिल्ली पहुंच गए हैं। मुहाफिज वहां एक दिन आराम करके आज बजरिया ट्रेन बम्बे के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर इसने कहा, मैं आज ही आरिफ और नज़ीर को आपके खतूत पहुंचा दूंगा और 2-3 रोज में कर्नल शंकर को भी आपका खत दे आऊंगा। सपना ने दिल्ली पहुंचते ही अपना दार्जिलिंग जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मेरे बार बार इसरार और समझाने के बावजूद वो आज से पहर एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस बम्बे आ रही है। मैंने फौरन हिदायत दी, आज शाम 7 बजे इसे एयरपोर्ट से रिसीव कर लेना, वरना वो खुद ही अकेले गैरेज पहुंच जाएगी। कैसर ने मजीद कहा, सपना के बम्बे पहुंचने पर आप इससे फ़ोन कर लेना और बहुत मुमकिन है कि 2-3 रोज के अंदर में भी बम्बे आ जाओ। यहाँ आकर मुझे बड़ी जुटन महसूस हो रही है। फिर इसकी आवाज़ भराई हुई लगने लगी। वो बोला, भाईजान, मैं आपके कलकत्ते वापसी के प्रोग्राम में रुकावट नहीं डालना चाहता। अगर आप मुझसे बम्बे में ना मिल सके तो भी मैं यहीं रहने और नई जिंदगी शुरू करने का सोच रहा हो। मैं चौंक गया और फौरन पूछा, कैसर, इतना बड़ा फैसला अचानक क्यों कर लिया? आखिर वजह क्या है? इसने थके हुए लहजे में कहा, भाईजान, फोन पर नहीं बता सकता कि यहाँ मुझ पर क्या बीती है। अगर आपको मेरा इतना ही ख्याल है
تو अपनी रवानगी 3-4 रोज के लिए मुलतवी कर दे। मैं जल्द अज जल्द आपके पास आ जाऊंगा। ये कहकर कैसर ने फोन बंद कर दिया। मैं लम्हों में बड़े मखमसे में पड़ गया। दिल चाह रहा था कि फौरन वापस जाओ, किनके बम्बे में क़याम को तूल देना मेरे और मेरे साथियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। गोखले वाली वारदात के अलावा मैं पहले ही डीएमआई की हिरासत से फरार होकर पूरे भारत में वांटेड था। गोगले की बीवी और बच्चे मेरे और कैसर के चेहरे शनास थे और उनकी मदद से बम्बई की पुलिस ने हमारे कदो कामत की तफसील के अलावा हमारे चेहरों के खाके भी बनाए होंगे। भारतीय हुकूमत को भी गोगले की सरपरस्ती थी, इसलिए पुलिस हमारी तलाश में अपनी पूरी तवानाइयां सर्फ कर रही थी। अखबारात में गोगले और उसके ग्रोह के खात्मे को स्मगलरों को किसी ऐसे ग्रोह की कार्रवाई लिखा गया था जिनसे उसकी कारोबारी अदावत थी। एक अखबार के इदारिये ने तो खुले अल्फाज में ये कार्रवाई किसी मुसलमान स्मगलर ग्रोह के सर थोपी थी। बम्बई बल्कि उस दौर के सारे भारत में मुसलमानों के सिर्फ 3 ग्रोह नुमाया थे और उस अखबार ने लिखा था कि ये कार्रवाई यकीनी तौर पर हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल या गनी मेमन में से किसी एक ने की है। इन हालात में हाजी मस्तान के पास मेरा कयाम और यूसुफ पटेल और गनी मेमन से मेरा राब्ता मुझे इस वारदात में मुलविस करने के लिए बहुत काफ़ी था, जबकि मैं पहले ही वांटेड था और अब यक न शुद दो शुद यानी कैसर और सपना की बम्बई वापसी और कैसर का मुझे चंद रोज़ मजीद यहाँ ठहरने पर इसरार ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था।